session tracking in servlet. This topic is in unit 2. We are revising it. Yesterday we have revised cookies topic. Okay. So first thing, what is session? Session क्या है? Session means a particular interval of time, right? Like cookies कितने types के? There are two types of cookie. Persistent cookie and non-persistent cookie. जो persistent cookie है, it is for the single interval of time. Okay. Single session के लिए persistent cookie use होता है. A non-persistent cookie for multiple session. Okay, for multiple session, non-persistent cookie is used. Session means simply means a particular interval of time. Okay. So what is the meaning of session tracking? Session tracking means जो जितने टाइम के तुम पेज पे थे उसका स्टेट मेंटेन करना. Okay, to maintain the state of the user. इसको बोलते हैं हम लोग session tracking. It is a way to maintain the state of the user. Session tracking or session management is in servlet, it is called as session management. It is also known as session management. It is same only session tracking or session management. So we know that when we are accessing the page by using the HTTP protocol, HTTP protocol जो है, it is a stateless protocol. That means it doesn't remember any state. Client का कोई भी state maintain नहीं करता है. So there is a need of a mechanism to maintain the data of the client. Okay. So इसीलिए क्या हुआ, session tracking techniques are used. Okay. Each time whenever the user is sending the request to the server क्या करता है, treats the request as the new request. तो ये होना चाहिए कि अगर client अगर second time वो access कर रहा है page, the server should recognize it. The client is the old one. So we need to maintain the state of a user to recognize to a particular user. Okay. So different ways is session tracking, and different techniques are there. Cookies, hidden form field, URL rewriting, and HTTP session. Okay. There are 4 session tracking techniques. फर्स्ट टेक्निक क्या है, कुकीज है. ठीक है. फर्स्ट वे क्या है सेशन ट्रैकिंग का, कुकीज के हेल्प से क्या कर सकते हो, वी कैन मेंटेन द स्टेट ऑफ द क्लाइंट का स्टेट, और यू कैन से वी कैन मेंटेन द डेटा ऑफ द क्लाइंट. तो फर्स्ट सेशन ट्रैकिंग टेक्निक इज cookies. Okay. So cookies I am not explaining again because yesterday only we have revised this topic. Cookie क्या होता है, how it works, and types of cookie, non-persistent and persistent cookie. Non-persistent cookie valid for single session, and persistent cookie for the multiple session. Okay. And second session tracking technique is URL hidden form field. तो हिडन फॉर्म फील्ड में क्या होता है, दिस हिडन फॉर्म फील्ड टेक्निक इट यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ एन यूजर. ओके, यूजर का स्टेट मेंटेन करने के लिए. तो हिडन क्यों लिखा हुआ है हिडन फॉर्म फील्ड, बिकॉज इसमें देखो कैसा होता है, इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन नेम. इनपुट टाइप में हिडन, ये यूजर को विजिबल नहीं होता है, ये हिडन फॉर्म में इनपुट टाइप हिडन दिया है, नेम दिया है और वैल्यू दिया, नेम यूजर नेम और वैल्यू विमल जायसवाल. इंफॉर्मेशन कौन से फॉर्म में, हिडन के फॉर्म में. ठीक है. तो इंफॉर्मेशन इन द हिडन फील्ड एंड गेट इट फ्रॉम अनदर सर्वलेट. इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करवाते हैं हम लोग, हिडन फील्ड में जो भी इंफॉर्मेशन है, और उसको हम लोग दूसरे सर्वलेट से फेच करवाते हैं. ठीक है. तो इससे एडवांटेज क्या है, दिस अप्रोच इज बेटर इफ वी हैव टू सबमिट फॉर्म इन ऑल द पेजेस एंड वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन द ब्राउजर. ठीक है. ब्राउजर पे तुम डिपेंड नहीं हो, अगर तुमको ब्राउजर पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है,
ब्राउजर में स्टेट मेंटेन नहीं करना तो व्हाट वी कैन डू, हिडन फील्ड सेट कर सकते हैं, और उसको हम लोग कहाँ से रिट्राइव करवा सकते हैं, जितने भी अदर पेजेस से। ठीक है, ब्राउजर में अगर हम लोग ने हिडन करवा दिए और बाकी दूसरे पेजेस से हम लोग रिट्राइव करवा रहे हैं। ठीक है, ये टेक्निक में क्या होगा, हम लोग को वी डोंट नीड टू डिपेंड ऑन दी ब्राउजर। हियर यूजर नेम इज द हिडन फील्ड, यूजर नेम इज द हिडन फील्ड, नेम एंड विमल जायसवाल इज द हिडन फील्ड वैल्यू। सेम थिंग दिया, यूजर नेम हिडन फील्ड है, ये हिडन का वैल्यू है। फिर रियल एप्लीकेशन ऑफ हिडन फॉर्म फील्ड क्या एग्जांपल दिया, इट इज वाइडली यूज्ड इन कॉमन फॉर्म ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट में व्हाट दे डज, पेज आईडी और पेज नेम, या तो पेज आईडी या तो पेज नेम किसमें सेट हुआ है, हिडन फील्ड में, सो दैट ईच पेज कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। अगर हिडन वैल्यू तुमने सेट कर दिया इधर पेज आईडी और पेज नेम, तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, यूआरएल रीराइटिंग में जो आइडेंटिफायर है कहाँ पे एम्बेड किया जाता है, इन द यूआरएल इटसेल्फ। ठीक है, इन द यूआरएल इटसेल्फ जो एड्रेस है पेज का, उसमें क्या अपेंड किया जाता है, आइडेंटिफायर टू द यूआरएल ऑफ द नेक्स्ट सर्वलेट और द नेक्स्ट रिसोर्स। ठीक है, तो यूआरएल के अंदर ही क्या सेट किया गया है, इसका आइडेंटिफायर सेट किया गया है पेज का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ऑफ यूआरएल रीराइटिंग। अभी देखो यूआरएल के अंदर यूआरएल क्वेश्चन मार्क नेम वन इक्वल टू नेम एंड वैल्यू, नेम टू एंड वैल्यू टू। ठीक है, तो नेम एंड वैल्यू पेयर जो है इट इज अपेंडेड इन दी यूआरएल इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है, व्हेन द यूजर क्लिक्स दी हाइपरलिंक द पैरामीटर नेम और वैल्यू पेयर। जैसे यूजर ने वो लिंक पे क्लिक किया, हाइपरलिंक पे, तो नेम एंड वैल्यू पेयर जो पेयर है दिया हुआ है वो हाइपरलिंक पे अपेंड किया हुआ है। हाइपरलिंक पे क्या अपेंड किया है, नेम एंड वैल्यू। So when the user clicks the hyperlink, the name and value pair जो है will be passed to the server, सर्वर पे चला जाएगा वो। ठीक है, वहां सर्वलेट से, then from a servlet we can use get parameter method to obtain a parameter value। तो यहाँ पे हाइपरलिंक में क्या अपेंड किया गया है, नेम एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, क्लिक करते कहाँ पे गया, सर्वर के पास। हाउ वी कैन फेच इट, बाय यूजिंग गेट पैरामीटर मेथड। ठीक है, कि HTTP सेशन ट्रैकिंग में फोर्थ वन इज HTTP सेशन। ठीक है, HTTP सेशन इंटरफेस एक सेशन ट्रैकिंग मेथड है, ठीक है, टू मेंटेन द स्टेट ऑफ द यूजर। तो इसमें क्या हो रहा है, एक सेशन आईडी सेट होगा। ठीक है, कंटेनर जो है, कंटेनर इज क्रिएटिंग अ सेशन आईडी फॉर ईच यूजर। जितने भी यूजर है उसके लिए एक सेशन आईडी क्रिएट होगा। देन द कंटेनर यूजेस दिस आईडी टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर यूजर। आईडी के हेल्प से ही यूजर आइडेंटिफाई होंगे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है HTTP सेशन इंटरफेस का, जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म टू टास्क। बाइंड ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को बाइंड करना पड़ेगा किसके साथ में, जो तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया HTTP सेशन, ऑब्जेक्ट का बाइंडिंग होना चाहिए सेशन आईडी के साथ में। ठीक है, देन व्यू एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन अबाउट ए सेशन सच एज दिस सेशन आइडेंटिफायर। सेशन का ऑब्जेक्ट जो है उसको बाइंडिंग करना पड़ेगा सेशन आइडेंटिफायर, क्रिएशन टाइम, लास्ट एक्सेस टाइम। ठीक है, ये सब हम लोग क्या टू टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। HTTP सेशन इंटरफेस कैन परफॉर्म टू टास्क, बाइंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, और we can view the information about the session such as सेशन कब क्रिएट हुआ है, कब लास्ट एक्सेस हुआ है। ठीक है, सेशन का आइडेंटिफायर क्या है, ये सब हम लोग व्यू कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इंटरफेस, HTTP सेशन इंटरफेस। ठीक है, the client is sending a request। ठीक है,
The client sends the request to the container. The container will create the object. The container will create the session ID. It creates unique session ID. Okay, session ID create किया. This is the second client. It is sending the request. Second one है. Container क्या कर रहा है? Container creates a unique session ID for each user. ये second user है, उसके लिए भी एक unique session ID create हुआ. ठीक है. So with the help of session ID, we can recognize the user. ये टू इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं सेशन HTTP सेशन इंटरफेस के. थ्री नॉट टू. गेट आईडी मेथड, गेट क्रिएशन टाइम, गेट लास्ट एक्सेस टाइम. ये भी देख लो इनवैलिडेट मेथड. गेट आईडी मेथड से वी कैन फेच दी आईडी. ओके, जो व्हाटएवर वी हैव सेट उससे हम लोग उसको रिट्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट आईडी मेथड. क्रिएशन टाइम मींस व्हेन द सेशन वाज क्रिएटेड, कब सेशन क्रिएट हुआ, कब लास्ट एक्सेस हुआ, पेज कब लास्ट एक्सेस हुआ उसका टाइम. गेट लास्ट एक्सेस टाइम. इनवैलिडेट मेथड से क्या होगा? इनवैलिडेट मतलब सेशन को अगर तुमको इनवैलिडेट करना है, ठीक है, मींस अनबाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग, अनबाइंडिंग एनी ऑब्जेक्ट बाउंड टू इट. सेशन आईडी के साथ में जो भी ऑब्जेक्ट तुमने बाइंड किए हो उसको अनबाइंड करना है, रिमूव हो जाएगा वो बाय यूजिंग दिस इनवैलिडेट मेथड. ठीक है. बाइंडिंग मींस मैप करना, अनबाइंडिंग मींस एक टाइप का रिमूवल है. ओके, तो सेशन को किससे अनबाइंड करे? ऑब्जेक्ट के साथ में. These are the four important methods of HTTP session interface. ऐसे याद रखना है. गेट आईडी मेथड, गेट क्रिएशन टाइम मेथड, गेट लास्ट एक्सेस टाइम एंड इनवैलिडेट मेथड. So how many types of session tracking are there? 4 types है. कौन से 4 types है? Cookies है, URL rewriting है, then hidden form field है, और फोर्थ वन क्या है? HTTP session. Okay. Okay, now we will see the life cycle of servlet. Okay, इसको we'll see the revision part. Life cycle of servlet में 3 important methods पहले याद रखना है. init method, service method and destroy method. 3 important methods are there in servlet life cycle: init, service and destroy. तो ये 3 methods है. init means initialization, service method means request and response, और लास्ट स्टेज इसका destroy है. 3 methods of servlet life cycle: init, service and destroy. Okay, and these are the life cycle steps दिया हुआ है यहाँ पे. phases of life cycle. पहले क्लास लोड होगा. सर्वलेट क्लास लोड होने के बाद ही एक इंस्टेंस क्रिएट होगा सर्वलेट का. ये इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद इनिट होगा. इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद इनिशियलाइजेशन होगा. और हमेशा इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद ही क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है. एक बार इनिशियलाइजेशन हो गया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सब हो सकता है. दैट इज सर्विस मेथड. लास्ट स्टेज है डिस्ट्रॉय. ठीक है, ये 5 स्टेप्स है. ये आगे पीछे नहीं चलेगा क्योंकि लाइफ साइकिल फेजेस है ना. इन मतलब in this order you have to remember: class is loaded, servlet class, then instance is created, initialization, init method is invoked, init method के पास after the init method service method is invoked, then destroy method is invoked. Okay, 5 steps of servlet life cycle. सर्विस मेथड में देखो, सर्विस मेथड में 2 parameters are passed: request and response. Service method takes 2 parameters, that is request and response. Okay. See, servlet first step क्या है? सर्वलेट क्लास इज लोडेड. ठीक है, सर्वलेट क्लास लोड होने के बाद कब लोड होगा सर्वलेट क्लास? व्हेन द फर्स्ट रिक्वेस्ट विद सर्वलेट रिसीव बाय द वेब कंटेनर. जब वेब कंटेनर के पास रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, फर्स्ट रिक्वेस्ट, तो क्लास जब लोड हो जाएगा वेब कंटेनर के पास, फ्रॉम द वेब कंटेनर
will receive the request. Then after receiving the request, the class is loaded into the container. Okay. Then after loading the class, एक instance create होगा, servlet instance is created. Okay. The web container is responsible for creating the instance of the servlet after loading the class. Okay. और ये जो instance है, it is created only once in the servlet life cycle. पूरे life cycle के लिए एक ही instance create होता है, and it is created by the container, and it is created only once in the servlet life cycle. Okay. After the creation of instance, init method. Okay, init method is invoked. That is initialization. ठीक है. The web container, इसमें भी web container क्या करता है? It calls the init method only once. Okay, एक ही बार in its lifetime, in its life cycle, it calls init method only once after creating the servlet instance. ठीक है. Init method means to initialize the servlet. ठीक है. और ये जो init method है, कौन से इंटरफेस का पार्ट है? सर्वलेट कॉन्फ़िग. init मेथड जो है, इट इज अ लाइफ साइकिल मेथड ऑफ, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट. अभी सर्वलेट कॉन्फ़िग हम लोग को पता है कौन से इंटरफेस में, ये पैकेज का नाम है जावा एक्स डॉट सर्वलेट. सर्वलेट कॉन्फ़िग जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में डिफाइन है. तो जो init मेथड है उसका इंटरफेस का नाम क्या है? सर्वलेट कॉन्फ़िग है. ठीक है. Then service method takes two parameters. ठीक है. Request and response. तो वेब कंटेनर कॉल्स द सर्विस मेथड. वेब कंटेनर हमेशा सर्विस मेथड कब कॉल करेगा? व्हेन रिक्वेस्ट फॉर द सर्वलेट इज रिसीव्ड. ठीक है. जब रिक्वेस्ट आएगा सर्वलेट के लिए तो दिस वेब कंटेनर विल कॉल द सर्विस मेथड. अगर सर्वलेट इनिशियलाइज नहीं है तो क्या होगा? पहले इनिशियलाइज होगा. ठीक है. अगर सर्वलेट इनिशियलाइज है इट कॉल द सर्विस मेथड. सर्विस मेथड कॉल होगा और उसमें से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू पैरामीटर्स है. ठीक है. डिस्ट्रॉय मेथड, वेब कंटेनर व्हेन डिस्ट्रॉय मेथड व्हेन वेब कंटेनर विल कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड, जब उसको रिमूव करना है सर्वलेट इंस्टेंस को अपने कंटेनर में से. ठीक है. व्हेन द वेब कंटेनर वांट्स टू रिमूव द इंस्टेंस, सर्वलेट इंस्टेंस, ये तो क्या होगा? इट गिव्स द सर्वलेट एन अपॉर्चुनिटी टू क्लीन अप एनी अप रिसोर्सेज. डिस्ट्रॉय करने से पहले वो क्या कर, क्लीन अप कर सकता है रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल मेमोरी क्लीन अप, थ्रेड. ठीक है. तो जो डिस्ट्रॉय मेथड ऑफ द सर्वलेट इंटरफेस इज गिवन बिलो. मींस अभी ये डिस्ट्रॉय मेथड जो है ये सर्वलेट इंटरफेस में डिफाइन है. अभी इंटरफेस क्या? सर्वलेट एपीआई वी हैव सीन, उसमें बहुत से इंटरफेसेस एंड क्लासेस थे. डिस्ट्रॉय मेथड सर्वलेट इंटरफेस के अंदर डिफाइन है. ठीक है. डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड इज यूज्ड. ये देखो सर्वलेट एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. सर्वलेट एपीआई में दो पैकेजेस है, जावा एक्स डॉट सर्वलेट एंड जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी. ये दो पैकेजेस है. और ये दो पैकेजेस में बहुत सारे क्या है? इंटरफेसेस एंड क्लासेस प्रेजेंट है. लाइक कुकी क्लास फॉर एग्जांपल. कुकी क्लास इन प्रेजेंट विच पैकेज? फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में है? cookie class जो है, it is present in which package? This first one or second one? HTTP में. यस. कुकी क्लास कहाँ पे है? ये वाले पैकेज में है. HTTP पैकेज में कुकी क्लास डिफाइन है. तो वैसे ही सर्वलेट एपीआई में दो टाइप की पैकेजेस है, और ये दो पैकेजेस में बहुत सारे इंटरफेसेस एंड क्लासेस प्रेजेंट है. ठीक है. और वो इंटरफेसेस एंड क्लासेस के अपने अपने मेथड्स भी है. राइट. इंटरफेसेस एंड क्लासेस के पास अपने अपने मेथड्स भी है. लाइक अभी हमने देखे इनिट मेथड, जो इनिशियलाइजेशन मेथड है वो सर्वलेट कॉन्फ़िग का पार्ट है. ठीक है.
और डिस्ट्रॉय मेथड सर्वलेट एपीआई का पार्ट है। दिस आर द सी इंटरफेसेस इन जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज। ये इंटरफेसेस दिया और ये क्लासेस का नाम दिया जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज का। देन एचटीटीपी पैकेज वाला इंटरफेसेस और क्लासेस। देखो यहाँ पे कुकी दिया है, कुकी किसका पार्ट है, कौन से क्लास में आता है, एचटीटीपी पैकेज के अंदर। ठीक है, ये यहाँ से भी रीड कर सकते हैं ये वाला टॉपिक। और शेद पब्लिकेशन बुक जो है गूगल क्लासरूम में आया हुआ अपलोडेड, वहां पे भी मतलब शेद के बुक में भी दिया हुआ है सही से। ठीक है, ये वाला टॉपिक सर्वलेट एपीआई। यूनिट नंबर 2 में सर्वलेट एक चैप्टर इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट डिस्पैचर है। ठीक है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर तो उसका कॉन्सेप्ट स्मॉल ही है। रिक्वेस्ट डिस्पैचर मीन्स ये एक इंटरफेस है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस है that provides the facility of dispatching the request to another resource। कौन सी फैसिलिटी है, रिक्वेस्ट को डिस्पैच करना कहाँ पे, दूसरे रिसोर्स पे। एक रिक्वेस्ट है उसको मैं डिस्पैच किसको कर रही हूँ, दूसरे मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे। ओके, डिस्पैचिंग द रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स। तो रिसोर्स कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, HTML, सर्वलेट, JSP। ओके, और ये इंटरफेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी यूज टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अनदर रिसोर्स ऑल्सो। डिस्पैच भी कर सकते हैं दूसरे मतलब डिस्पैच मीन एक टाइप का फॉरवर्डिंग है। ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे। और व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अनदर रिसोर्स। अपने पेज में दूसरे पेज का कंटेंट इंक्लूड भी कर सकते हैं। दो दिस रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस कंटेन्स टू मेथड्स, फॉरवर्ड मेथड एंड इंक्लूड मेथड। ठीक है, फॉरवर्ड मीन्स रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना फ्रॉम अ सर्वलेट पेज टू अनदर पेज। इंक्लूड मीन्स जो कंटेंट है दूसरे रिसोर्स का वो इंक्लूड करवाना अपने पेज में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है फॉरवर्ड मेथड का और इंक्लूड मेथड का एग्जांपल है। ओके, फिगर देखो जस्ट, दिस क्लाइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट। ठीक है, सर्वलेट ने क्या किया, इसको फॉरवर्ड किया टू द अनदर सर्वलेट। रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, सर्वलेट 2 ने क्या किया, फिर रिस्पॉन्स जनरेट किया, देन दैट रिस्पॉन्स इज सेंड बैक टू द क्लाइंट। फॉरवर्ड मेथड क्या कर रहा है, इट फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट फ्रॉम वन रिसोर्स टू द अनदर रिसोर्स, फ्रॉम वन रिसोर्स टू द अनदर रिसोर्स, and that another resource is generating response and sending back to the client। okay, but include method में क्या है, include the content of the resource, right? Include the content। तो include method में client is sending the request to the servlet। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दो पेजेस है सर्वलेट के, सर्वलेट 1 एंड सर्वलेट 2। तो ये सर्वलेट 2 का जो कंटेंट है मुझे कहाँ पे इंक्लूड करना है, अपने ये वाले पेज में, फॉरवर्ड नहीं करना है, ये वाले पेज में ही कंटेंट को इंक्लूड करना है। सर्वलेट 2 का कंटेंट आई वांट टू इंक्लूड इन सर्वलेट 1। तो इंक्लूड मेथड इज यूज फॉर दैट। ठीक है, तो इंक्लूड मेथड के हेल्प से सर्वलेट 2 का जो कंटेंट है ये सर्वलेट 1 में आ गया। ठीक है, देन क्या हो रहा है, उसके बाद रिस्पॉन्स इज जनरेटेड, यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। इसने क्या किया, रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट 2 जो है इट इज इंक्लूडेड इन सर्वलेट 1। ठीक है, बिकॉज वी हैव यूज इंक्लूड मेथड ना। उसके बाद फाइनल रिस्पॉन्स इज जनरेटेड, इंक्लूड होने के बाद जो भी फाइनल थिंग है वो रेडी होगा, देन वो क्या होगा, इट इज सेंड बैक टू द क्लाइंट। तो इंक्लूड मेथड में क्या हो रहा है, वी आर इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ अनदर पेज। ठीक है, अपने पेज में क्या करें, वी आर इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ अनदर पेज। अभी यहाँ पे सर्वलेट 2 का कंटेंट वी आर इंक्लूडिंग इन सर्वलेट 1। ठीक है, एक पेज में
फर्स्ट पेज में हम लोग क्या करें, फॉर एग्जाम्पल वी आर इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ नेक्स्ट पेज, जो भी नेक्स्ट पेज इज प्रेजेंट है, बाय यूजिंग इंक्लूड मेथड। So there are two methods in request dispatcher, forward method and include method. Okay. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है that we have already performed this practical also, request dispatcher interface का। अगर क्लाइंट वैलिडेट सर्वलेट का प्रैक्टिकल हम लोगों ने किए थे, याद है कि द पासवर्ड इज सर्वलेट, फॉरवर्ड करना चाहिए रिक्वेस्ट द वेलकम सर्वलेट पेज। अदरवाइज अगर मतलब वैलिडेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करना चाहिए, एरर मैसेज शो करना चाहिए, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहाँ पे दिया गया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज है, देन एक सर्वलेट का पेज है, एक वेलकम पेज है, ठीक है। तो इफ यू हैव इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वैलिडेट सर्वलेट, अगर यस हो गया, ठीक है, अगर पासवर्ड इज सर्वलेट मैच हो गया, तो कहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है, टू दी वेलकम सर्वलेट। अगर नहीं वैलिडेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, जो वेलकम सर्वे इसके अंदर जो लिखा है, क्या लिखा है, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड एरर सेट किया हम लोग ने जो, ठीक है, वो जो सॉरी यूजर नेम पासवर्ड जो कंटेंट है, ठीक है, अब इसको क्या करेगा वो, इट विल इंक्लूड द कंटेंट इन दी सेम पेज इटसेल्फ, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज में डिस्प्ले करेगा। ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का पेज है और यही पेज में वो डिस्प्ले कर रहा है सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर, ठीक है। यहाँ से उसने चेक किया वैलिडेशन, लॉगिन के पेज से चेक किया, देन इफ इट इनवैलिडेट इट विल डिस्प्ले सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड एरर। तो इसमें जस्ट ये शो हो रहा है कि फॉरवर्ड और इंक्लूड, फॉरवर्ड से कैसे फॉरवर्ड हो रहा है दूसरे पेज पे, इंक्लूड से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आर स्टेइंग ऑन द सेम पेज इटसेल्फ, दैट इज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, वहीं पे डिस्प्ले हो रहा है सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड एरर। कितने पेजेस से वो दिया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, लॉगिन डॉट जावा में हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे पासवर्ड सर्वलेट, और क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे रिक्वेस्ट टू द वेलकम सर्वलेट, ठीक है। वेलकम सर्वलेट में जस्ट वेलकम मैसेज रहेगा, 3 पेजेस, ये 3 पेजेस में कोडिंग होगा। ये तो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल है, वेब डॉट एक्सएमएल। ये हम लोग जब सर्वलेट का पेज क्रिएट करते हैं तो एक ऑप्शन आता है ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ठीक है। तो ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल में क्या रहता है, इन्फॉर्मेशन रहता है सर्वलेट का, लाइक सर्वलेट का नेम, सर्वलेट का मैपिंग किया हुआ होता है ये फाइल में। तो ये तो बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है, मतलब अगर तुम टिक नहीं करोगे ऐड इन्फॉर्मेशन तो नहीं रहेगा प्रेजेंट, और ये फाइल रेडी रहता है वेब डॉट एक्सएमएल। तो टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द वेब डॉट एक्सएमएल, क्या करना है हम लोग को, सर्वलेट क्रिएट करने के टाइम पे वो टिक करना है चेक बॉक्स को,